Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy. I teach statistics of 12 Commerce English Medium. Chapter number 4, Time Series, Part 1. In this chapter, contents are: first, time series, introduction, meaning, importance, definition and utility. Second, components of time series. And third, method of measuring trade. Here three types of method: graphical method, measure of least square and method of moving average. ग्राफिकल मेथड जो है उसके सम एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट आपको सीखनी जरूरी है. काइंड योर इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ meaning of time series. The statistical data collected at certain interval of time and arranged in a chronological order is called a time series. Okay, time series क्या है? तो जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो टाइम के हिसाब से हमें ऑर्डर में अरेंज करने हैं. ओके, तो उसे क्या कहते हैं? टाइम सीरीज. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फर्म है तो उसके प्रॉफिट की बात करें तो हर साल का प्रॉफिट हमें मेंशन करना रहता है. तो इजीली हम कह सकते कि 2001 में कितना प्रॉफिट हुआ था, 2002 में कितना प्रॉफिट हुआ था, 2003 में कितना. तो जो प्रॉफिट का जो डेटा है वो हम कैसे अरेंज करते हैं? ईयर वाइज. ईयर माने टाइम के वाइज कि 2001, 2002, 2003 वैसे टाइम के हिसाब से अरेंज करते हैं. तो उसे क्या कहते हैं? टाइम सीरीज. That is population of country, agriculture production, wholesale price index number, data from share market and early temperature in a city, etc. are prepared with respect to time. Time series consists to values of variable associated with time. Now definition. The set of values of a variable quantity y obtained at different points of t is called time series. Okay, टाइम t जो हम अलग अलग टाइम मेंशन करते हैं वो, एंड क्वांटिटी y माने जो डेटा हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? y. ओके, सो टाइम सीरीज इक्वल टू करली ब्रैकेट इन yt इक्वल टू 1 to so on. Here time is an independent variable and yt is a dependent variable. We can write the time series in following tabular form. Here time t independent variable is 1, 2, 3 so on. वैसे वेरिएबल yt इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल y1, y2, y3 so on. Okay, now most IMP question, एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज. आपको एग्जाम में एक मार्क्स में आता है कि मॉडल ऑफ टाइम सीरीज लिखो. तो मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज yt इक्वल टू tt प्लस ht प्लस ct प्लस rt. यही फॉर्म में आपको लिखना है. ओके, वेयर yt इक्वल टू टोटल वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज, tt इक्वल टू ट्रेड, ht इक्वल टू सीजनल कंपोनेंट, ct इक्वल टू cyclical component and RT equal to random component. Here trade TT equal to, अब देख सकते हो यहाँ क्या करेंगे? TT कैसे फाइंड आउट करेंगे? YT माइनस एच ब्रैकेट में HT प्लस CT प्लस RT. तो हमने क्या किया? यहाँ TT वन साइड रख दिया, ये सारे कंपोनेंट दूसरी साइड लेके गए, सो नेगेटिव हो जाएंगे. सो ट्रेड टी इक्वल टू YT माइनस ब्रैकेट में HT प्लस CT प्लस RT. ओके, नाउ सीजनल कंपोनेंट. सीजनल कंपोनेंट में भी सीजनल कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय ST. सो ST इक्वल टू YT माइनस ब्रैकेट में TT प्लस CT प्लस RT. नाउ थर्ड cyclical component denoted by CT. So formula is CT equal to YT minus bracket में TT plus HT plus RT. And last random component denoted by capital RT. So formula IT equal to YT minus bracket में TT plus HT plus RT. ये चारों में से और ये मॉडल ऐसे में से कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं एग्जाम में. ओके,
ऊपर जो भी नोट मैंने दी वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और बाय हार्ट करनी है. ओके, नाउ एग्जाम्पल 1. द ईयरली प्रोडक्शन इन tons of a factory is as follow. Obtain the trade using graphical method. ऐसे ग्राफ एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं तो भी हम ये सीखेंगे. ओके, नाउ ईयर जो दिया है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो हम क्या करेंगे, उसे टाइम में कन्वर्ट करेंगे. सो हियर वी विल रिप्रेजेंट दिस डेटा एज फॉलोइंग टाइम series. Okay, so time t equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now we write production denoted by yt. Okay, so 20 23 20 28 32 35 30 40 45 and 47. We will plot this point on the graph by taking t on x-axis and production yt on y-axis. The pattern of points indicates that linear trade is more suitable. चलो हम क्या करेंगे, टाइम t वेरिएबल है उसे x एक्सिस पे लेंगे और प्रोडक्शन yt को y एक्सिस पे लेंगे. ओके, सो हियर ग्राफ टाइम t and production on y axis. Here ओके 1 2 3 1 to 10 तक ले लिया, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. और वाई एक्सिस पे कैसे लिया, हियर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज 47. ओके, एंड मिनिमम इज 20. ओके, सो हियर राइट स्केल x axis equal to 1 centimeter equal to 1 year and y axis equal to 1 centimeter equal to 5 tons. Okay, so here 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. Okay, 1 centimeter equal to 5 tons का different दिया. Okay, now first here time 1 then production yt equal to 20. So here 1 and production कितना है 20. So here this point. Okay, वैसे जब भी सेकेंड टाइम में क्या हो 2 हो, क्या हो 2, तभी प्रोडक्शन कितना है देखते हैं, प्रोडक्शन इज 23. ओके, सो हियर 23 देन 3 तभी अगेन 20, यहाँ 4 28 है, कितना है 28. सो कहाँ होगा दिस पॉइंट. ओके, वैसे 5 तभी 32, चलो 5 के 5 एक्स एक्सिस पे 5 टाइम और 32 माने 30 से ज़्यादा माने दिस पॉइंट. ओके, वैसे 6 तभी 35, तो कौन सा 6 तभी 35 माने दिस पॉइंट. 7 तभी 30, 7 हो तभी 30, अगेन नीचे चला गया. देन 8 तभी 40, 40 तो कहाँ है, ये रहा दिस पॉइंट. 9 तभी 45 दिस पॉइंट एंड 10 तभी 47. सो दिस पॉइंट. चलो सारे पॉइंट मिल गए. बाद में हमें क्या करना है, स्केल से ये सारे पॉइंट ज्वाइंट करने. देखो ये रहा. ओके, तो ये जो लाइनिंग मिली उसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल सीरीज़. क्या कहते हैं, ओरिजिनल सीरीज़. बाद में हमें क्या करना है, स्केल से मैक्सिमम पॉइंट कवर हो वैसे एक लाइन खींचनी है. ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक ही आए, किसी की यहाँ भी आ सकती है, किसी की ऐसे भी आ सकती है. ओके, तो मैं यहाँ अलग अलग सबकी लाइन एक लाइन खींचनी है, तो उसे वो लाइन को क्या कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रेंड. ओके, माने ये जो लाइन है उसके आजू बाजू सारे पॉइंट्स आने चाहिए. ट्रेंड सबकी अलग अलग भी आ सकती है. ओके, द लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ पॉइंट सो ट्रेंड. ओके, नाउ एग्जाम्पल 2.
The data about monthly sales in 1000 rupees of a company are given in the following table. Obtain trade using graphical method. अगेन हमें ट्रेंड फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से. वापस कह रही हूँ, ऐसे सम एग्जाम में नहीं आते तो भी काइंडली और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सीखने हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल variable x is month and variable y is sales, so we convert month in time. Okay, so January, February, March, April, May, June, July, August, September. So convert in time 1 2 3 4 5 6 7 8 and sales denoted by YT. So 13 14 15 20 25 35 47 49 and 57. We will plot this point on a graph by taking T on x-axis and sales YT on y-axis. It indicates that the non-linear trend is more suitable of this data. चलो x-axis पे टाइम T डिनोट करेंगे एंड y-axis पे YT माने सेल्स डिनोट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मंथ. ओके, एंड वाई एक्सिस पे सबसे स्मॉलेस्ट डेटा क्या है 13 और सबसे बिगेस्ट 57. सो स्केल क्या लेंगे हियर, वाई एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 माने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 का डिफरेंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिनोट एक्स एक्सिस पे क्या टाइम लिया, वाई एक्सिस पे सेल्स लिया, देन वी राइट स्केल. सो फर्स्ट चलो अगेन ये डेटा आपके पास है 1 तभी 13, चलो 1 तभी 13 माने ये रहा 13. ओके, दिस पॉइंट. बाद में 2 तभी 14 माने ये पॉइंट, 3 तभी 15 दिस पॉइंट, 4 तभी 20 दिस पॉइंट. आप ये सामने से देख सकते हो 20. ओके, 5th तभी 25, 6th तभी 35. कैसे, यहाँ देखो 6 एंड 35 ऐसे. ओके, ये आपको सबको प्लॉटेड करना आता है. चलो 7th तभी 47, चलो 7th तभी 47 माने 47 कहाँ आएगा 45 के ऊपर, सो दिस पॉइंट. ओके, एंड 8 तभी 49, सो दिस पॉइंट, एंड लास्ट 9 तभी 57, सो दिस पॉइंट. चलो ये पॉइंट जो है वो हमें क्या करने हैं, जॉइंट करने हैं पेंसिल से, स्केल के यूज़ से जॉइंट कर दिया. बाद में ये जो जॉइंट की तो वो हमें क्या मिला, ओरिजिनल सीरीज़ मिली. क्या मिली, ओरिजिनल सीरीज़. बाद में हमें क्या करना है, यहाँ आप देखो कर्व आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्केल का यूज़ करके भी कर सकते हो या तो आप हल्के हाथों से भी आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो. मैक्सिमम पॉइंट कवर हो. वैसे देखो ये हाथों से यहाँ किया है कर्व, तो ये जो लाइन पास करते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रेंड. ओके, द कर्व पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ सो ट्रेंड. ओके, नाउ exercise 4.1. First, the information about the capacity in lakh tons to lot ships at the port each year in given below. Find the linear trend using graphical method. चलो यहाँ आपको क्या करना है, ईयर जो दिए हैं 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 उसको किस में कन्वर्ट करना है, टाइम टी में कन्वर्ट करना है. और कैपेसिटी जो दी है उसे वाई टी लेना है. ओके, सो एक्स एक्सिस पे टी लेना है, वाई एक्सिस पे कैपेसिटी लेना है. ओके, ईयर स्केल में आप क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, एंड वाई एक्सिस पे स्केल में आप क्या लोगे, यहाँ देखो 90, 97. सो एक काम करना, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंट ले लेना. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लाख टन ऐसे कुछ ले लेना. ओके, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो. ओके, नाउ सेकेंड, द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 1000 विजिटिंग द सर्टेन टूरिस्ट प्लेस इज फॉलो. फाइंड द ट्रेड यूजिंग द सुटेबल ग्राफ. ओके, यहाँ भी आपको ईयर दिया है, इसे टाइम में कन्वर्ट करना. सो एक्स एक्सिस पे टाइम लेना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, एंड नंबर ऑफ टूरिस्ट 1000 माने उसे वाई वेरिएबल ले लेना वाई टी. ओके, हियर स्मॉलेस्ट इज 5 एंड बिगेस्ट इज 15. सो वाई एक्सिस पे स्केल क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000.
1000 टूरिस्ट। ओके, बाद में पॉइंट फाइंड आउट करना है और एक लाइन खींचनी, और एक लाइन जो भी पॉइंट मिला उसे क्या करना है, स्केल से जॉइंट करना है। वो जो मिले वो ओरिजिनल सीरीज मिलेगी। बाद में हमें क्या करना है, वो पॉइंट कवर हो वैसे एक लाइन बीच में से पास आउट करनी है, तो वो क्या मिलेगी, ट्रेंड मिलेगी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, द डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स YT पर 1000 बॉयज इन द एज ग्रुप 0 to 6 year of a state are given in the following table. Obtain the linear trade using graphical method। चलो यहाँ भी आपको ईयर दिया है तो ईयर को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वेरिएबल t इक्वल टू ले लेना है, वैसे वेरिएबल YT इक्वल टू आपको डेटा दे दिए हैं। ओके, इसे आपको y एक्सिस पे डिनोट करना है। चलो यहाँ x एक्सिस पे स्केल क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर। बट वेरिएबल y पे आप देख सकते हो कि सारे डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 900 से 8। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको y एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 800, 810, 820 ऐसे लग सकते हो। बट आपको क्या करना होगा, वो जो y एक्सिस है वहाँ कट करनी होगी। पता है ना, वो मैंने सिखाया था, क्योंकि 0 से डायरेक्ट 800 नहीं आता। सो क्या करोगे आप कि y एक्सिस पे थोड़ा कट करोगे। ओके, तो आप ले सकते हो। वैसे बाद में पॉइंट जॉइंट करके क्या करना है, हमें लाइन खींचनी है, तो वो आपको क्या मिलेगी, ओरिजिनल सीरीज मिलेगी। बाद में उसमें से एक लाइन पास आउट करनी है, वो आपको क्या मिलेगा, ट्रेंड मिलेगा। ओके, नाउ हियर क्वेश्चन 4, the data about the closing prices of share of a company for 10 days are given in the following table. Obtain the trend using graphical method। चलो यहाँ डे आपको दिया है, डे की जगह आपको क्या करना है, टाइम t लिखना है। ओके, एंड प्राइस ऑफ द शेयर इज डिनोटेड बाय YT। ओके, आपको यहाँ भी ग्राफिकल मेथड करके ट्रेंड और ओरिजिनल सीरीज फाइंड आउट करनी है। वैसे यहाँ 9, द फॉलोइंग टाइम सीरीज शो द डेली प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द ट्रेड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। चलो यहाँ भी आपको डे एंड प्रोडक्शन, डे इज डिनोटेड बाय टाइम t, सो डे कन्वर्ट इन अ टाइम t, एंड प्रोडक्शन is denoted by YT। Here time t denoted by x-axis and production YT is denoted by y-axis। Okay, so scale 1 centimeter equal to 1 day and y-axis 1 centimeter equal to, here smallest is 21 and biggest is 27। सो 1 यूनिट का डिफरेंट ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बाद में आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट मिले उसे जॉइंट करना है, जो आपको ओरिजिनल सीरीज मिलेगी। बाद में जो भी ओरिजिनल सीरीज मिली, माने पॉइंट कवर करके एक और लाइन खींचनी है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेंड मिलेगा। ओके, थैंक यू।